Hello children, I hope you all are doing good. Let's start today's chapter, number system. Let's know about decimal number system, binary number system, octal number system, hexadecimal number system, converting decimal numbers to binary, octal and hexadecimal numbers. When you type some letters or words, the computer translates them in numbers as computers can understand only numbers. The technique to represent the numbers and work with numbers is called number system. A computer can understand the positional number system where there are only a few symbols called digits, and these symbols represent different values depending on the position they occupy in the number. देखिए, हम कंप्यूटर में जब भी कोई लेटर्स टाइप करते हैं या वर्ड्स टाइप करते हैं तो कंप्यूटर क्या करता है, उसे नंबर्स की फॉर्म में ट्रांसलेट करता है, क्योंकि कंप्यूटर्स को सिर्फ समझ आते हैं नंबर्स, उन्हें लेटर्स या वर्ड्स नहीं समझ में आते हैं. तो ये जो टेक्निक होती है जिसमें कि नंबर्स को रिप्रेजेंट किया जाता है नंबर्स के साथ, उसे कहते हैं नंबर सिस्टम. कंप्यूटर्स जो है वो अंडरस्टैंड करता है पोजिशनल नंबर सिस्टम को, जहाँ पे आपके कुछ सिंबल्स होते हैं जिन्हें कहा जाता है डिजिट्स, एंड ये जो सिंबल्स होते हैं ये रिप्रेजेंट करते हैं डिफरेंट वैल्यूज़ को. वो डिपेंड करते हैं कि वो कौन सी पोजीशन ऑक्यूपाई कर रहे हैं. द नंबर सिस्टम्स यूज्ड फॉर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा इन द कंप्यूटर आर गिवन बिलो. देखिए, आपके पास कुछ नंबर सिस्टम है, जैसे कि बाइनरी नंबर सिस्टम में बेस वैल्यू होता है 2, तो इसमें नंबर अल्फ़ाबेटिकल कैरेक्टर होंगे आपके 0 and 1. ऑक्टल में आपका बेस वैल्यू है 8 एंड नंबर्स आपके होंगे 0 से लेके 7 तक. इसी तरह से डेसिमल में आपका है बेस वैल्यू 10 एंड नंबर्स आपके हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9. हेक्साडेसिमल में बेस वैल्यू है 6 एंड नंबर्स आपके पास आएंगे 0 to 9 एंड अल्फाबेटिक कैरेक्टर होंगे A B C D E and F. Use of binary numbers in computer data representation. Computer represents data in two signal states. There are two voltage levels for these two symbols. One is named as a high voltage level and the other is named as low voltage level. 0 and 1 digits respectively represent these low and high voltage levels in a circuit. Thus, 1 and 0 states are equal to the on and off states of an electronic circuit. Any data in the world can be represented on the computer using these two digits. When data stored in secondary storage is sent to the main memory, and when it is sent to the central processing unit from there, that data is converted to a binary code. देखिए, कंप्यूटर जो है वो रिप्रेजेंट करता है दो सिग्नल स्टेट्स को. ये आपके होते हैं दो वोल्टेज लेवल्स, एक होता है आपका हाई वोल्टेज लेवल और एक होता है आपका लो वोल्टेज लेवल. अब आपका जो 0 है दैट इज आपका लो वोल्टेज लेवल एंड 1 जो है आपका हाई वोल्टेज लेवल है. यानी कि 1 एंड जो 0 है स्टेटस ये इक्वल टू किसके होते हैं, 1 इज इक्वल्स टू ऑन एंड 0 का मतलब है ऑफ स्टेट्स, राइट. तो जब आपका डेटा स्टोर होता है सेकेंडरी स्टोरेज में तो ये भेजा जाता है मेन मेमोरी में, उसके बाद ये जाता है CPU में एंड देन डेटा जो है कन्वर्ट हो जाता है एक बाइनरी कोड में. डेसिमल नंबर सिस्टम. Each number system is made of a unit, number and base radix. Unit is a single project. For instance, a mango, a rupee and a day can be considered as a unit. Unit आपका सिंगल प्रोजेक्ट है, जैसे कि आपका एग्जाम्पल है मैंगो या फिर डे, ये आपका सिंगल यूनिट है. Number. A number is a symbol which represents a unit or quantity. Base or radix. The number of symbols used in a number system is called the base radix. The base of any number system is indicated in decimal number. देखिए, जो number of symbols आपके यूज़ किए गए हैं नंबर सिस्टम में उसे हम बोलते हैं बेस या फिर रेडिक्स. To perform calculations using decimal number system which consists of digits from 0 to 9, normally the base value of decimal numbers are not mentioned, but for the other numbers the base value has to be mentioned. The digits that are used in the decimal number system are as given below. अब देखिए, जो डिजिट आपकी डेसिमल नंबर सिस्टम में है वो नीचे दी गई है. बेस आपका कितना है 10 एंड जो डिजिट्स आपकी यूज होंगी वो होंगी 0 से लेके 9 तक. एग्जाम्पल देखते हैं. लेट अस कंसिडर हाउ द नंबर 36 इज फॉर्म. 36 आपका बना है एडिशन 30 + 6. अब इसको और आप किससे एक्सपेंड कर सकते हैं, 3 × 10 + 6 × 1. अब 3 × 10 की पावर 1 एंड क्योंकि 6 के साथ कोई 10 नहीं है तो हम 10 की पावर करेंगे 0, क्योंकि जिसकी पावर 0 होती है उसकी वैल्यू होती है 1. तो ये जो पोजिशनल वैल्यूज़ हैं आपकी, जैसे कि 10 raised to the power 0 और 10 raised to the power 1 और 10 raised to the power 2, इसी तरह से are called weighting factors of the decimal number system. This number can be shown on a counting
फ्रेम यानी कि एबेकस, इसे हम एबेकस में भी शो कर सकते हैं। जैसे कि आपको दिखाया गया है, देखिए वंस पे आपके कितने रखे गए हैं, 6 बीड्स आर देयर, और टेंस पे आपके कितने बीड्स हैं, 3 बीड्स हैं, यानी कि 36। और इसके अलावा आप नंबर को कैसे शो कर सकते हैं, ये आपने ज़रूर एक्सपेंडेड फॉर्म में किया होगा मैथ्स में, राइट? तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं। नेक्स्ट है बाइनरी नंबर सिस्टम। Though we use the decimal number system when we input numbers as data or instructions, the computer represents these data as 0 and 1. The number system which consists of 0 and 1 is a binary number system. वो number system जिसमें आपके 0 and 1 होता है उसे हम बोलते हैं binary number system. No more. The specific collections of bits are a single 1 or 0 is called binary digit or bit. A group of 4 bits is called a nibble. A group of 8 bits is called a byte. A group of 16 bits or more is called a word. देखिए बिट्स का कुछ स्पेसिफिक कलेक्शन है, जैसे कि आपका सिंगल 1 या 0 है, इसे हम बोलेंगे बाइनरी डिजिट या फिर बिट। आपके 4 बिट्स का जो कलेक्शन होता है उसे बोलते हैं हम निबल, और 8 बिट्स का जो ग्रुप होता है उसे हम कहते हैं बाइट। इसी तरह से 16 बिट्स का जो ग्रुप होता है उसे हम कहते हैं वर्ड। The digits for the binary number system are given below. देखिए बाइनरी नंबर सिस्टम में आपका बेस जो है वो है आपका 2 एंड डिजिट इसमें जो यूज होंगी वो सिर्फ होंगी आपकी 0 एंड 1। अब एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे आपके दिया गया है 11101101 एंड देन 2। 2 एक्चुअली लास्ट में क्यों लगाया गया है, 2 जो है आपका वो बेस वैल्यू है। अब देखिए इसे किस तरह से लिखा गया है, 2 raised to the power 7, then 2 raised to the power 6, 2 raised to the power 5, 4, then 3, then 2 raised to the power 2, then 2 raised to the power 1 and 2 raised to the power 0। ये आपके वेटिंग फैक्टर्स हैं। जैसे आपके पिछले एग्जाम्पल में 10 raised to the power 0, 10 raised to the power 1, ये वेटिंग फैक्टर थे, इसमें आपकी बेस वैल्यू 2 है। The values such as 2 raised to the power 0, 2 raised to the power 1, 2 raised to the power and so on are called the weighting factors of the binary number system. This number can be indicated in a binary based counting frame as given below. देखिए नीचे आपको किस तरह से इसको रिप्रेजेंट किया गया है। हंड्रेड्स आपके हैं 28, 64s, 32s यानी कि 2 30s, 16s, 8s, 4s, 2s and 1s. The binary number system is very important in computing and it contributes in the representation of a bit, the basic measuring unit of the computer. The smallest value and the highest value which can be seen in this number system is 0 or 1 respectively. The smallest value is called binary number system है वो काफ़ी important है कंप्यूटिंग में यानी कैलकुलेशन में, क्योंकि ये क्या करता है, ये बिट को रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि आप इसमें आपकी सिर्फ 2 वैल्यूज़ हैं 0 एंड 1, आपकी हाईएस्ट वैल्यू आपकी 1 है एंड आपकी लोएस्ट वैल्यू है 0, तो जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है उसे हम कहते हैं बिट। ऑक्टल नंबर सिस्टम, the number system which uses 8 digits 0 to 7 is called the octal number system. The digits of the octal number system are given below. देखिए इसमें आपका बेस होगा 8 और जो डिजिट्स हैं वो यूज़ की जाएंगी आपकी 0 से लेके 7 तक। फॉर इंस्टेंस आपको एक एग्जाम्पल दिया गया है 126 एंड बेस वैल्यू इज 8। इसे किस तरह से रिप्रेजेंट किया गया है, देखिए 1, 2 एंड 6 अलग, 8 raised to the power 2, 8 raised to the power 1 एंड 8 raised to the power 0। तो देखिए जो आपकी वैल्यूज हैं जैसे कि 8 raised to the power 1, 0, 8 raised to the power 2 and so on are called the weighting factors of the octal number system. This number can be represented as given below in a base 8 counting frame. देखिए ये आपके किस तरह से काउंटिंग फ्रेम में इसको रिप्रेजेंट किया गया है। 4096 को लिखा गया है 8 raised to the power 4, 512 आपका है 8 raised to the power 3, इसी तरह से 64 है 8 raised to the power 2, 8 है आपका 8 raised to the power 1 and 1 यानी 8 raised to the power 0. Hexadecimal number system. The computers uses binary numbers and is difficult for human beings to read them. Hence, the hexadecimal number system is used as it is easier for humans to use. In the hexadecimal number system, 10 digits are used from 0 to 9, and for the other 6 symbols, A, B, C, D, E and F symbols are used. Here, A, B, C, D, E and F are used to represent 10, 11, 12, 13, 14 and 15. देखिए कंप्यूटर्स जो हैं वो तो बाइनरी नंबर सिस्टम यूज़ करते हैं, बट वो ह्यूमंस के लिए बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है रीड करने के लिए, तो इसीलिए जो आपका हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम है इसको यूज़ करना इजी होता है ह्यूमंस के लिए। तो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में आपके 10 डिजिट्स यूज़ की जाती है 0 से लेकर 9 तक और 6 सिम्बल्स A, B, C, D, E, F जो कि रिप्रेजेंट करते हैं 10, 11, 12, 13, 14 एंड 15 को।
देखिए आप टेबल आपको दी गई है, इसमें डेसिमल नंबर्स हैं आपके 0 से लेके 15 तक और हेक्साडेसिमल नंबर है आपके 0 से लेके 9 तक और उसके बाद आपके ABCDEF है। द डिजिट ऑफ द हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम आर गिवन बिलो। देखिए बेस आपका इसमें होता है 16 और जो डिजिट्स यूज की जाती हैं 0 से लेके 9 एंड देन आपके ABCDE एंड F। When F, the largest number of hexadecimal number system, is expressed in binary form, it can be indicated with 4 bits. Thus, instead of using a binary number with 4 bits, a single number in hexadecimal number system can be used. For example, hexadecimal numbers are used to represent memory address of the computer. For instance, let us consider 27A base power 16. आपके पास 27 एक नंबर दिया गया है एंड a बेस पावर 16 है, तो इसे कैसे लिखेंगे? देखिए 16 रेज टू द पावर 2 एंड 7 को लिखा गया है 16 रेज टू द पावर 1 एंड a 16 आपका है 16 रेज टू द पावर 0। तो यहाँ पे जो आपकी जो वैल्यूज हैं 16 रेज टू द पावर 0, 16 रेज टू द पावर 1 एंड सो ऑन, ये आपके हैं वेटिंग फैक्टर्स ऑफ हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। दिस नंबर can be represented on a 16 base counting frame as given below। अब देखिए काउंटिंग फ्रेम में इसे किस तरह से रिप्रेजेंट किया गया है। देखिए 4096 यानी कि 4096 को लिखा गया है 16 रेज टू द पावर 3, 256 16 raised to the power 2, 16s 16 raised to the power 1 and 1s 16 raised to the power 0. Converting decimal numbers to binary, octal and hexadecimal numbers. All the data we input into the computer is taken by it as digits of binary number system 0 and 1. Hence, the knowledge to convert a base 10 number to another base is important. अब देखिए डेसिमल नंबर्स को बाइनरी, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल नंबर्स में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। सबसे पहले आपका कन्वर्जन ऑफ डेसिमल नंबर्स टू बाइनरी नंबर्स। When a decimal number is converted to a binary number, the decimal number can be divided by 2 until the quotient is 0 and the remainder of the division can be written on the right side. After that, write all the remainders from the bottom to top to build the number. देखिए जब डेसिमल नंबर को कन्वर्ट किया जाता है आपके बाइनरी नंबर को, तो डेसिमल नंबर को डिवाइड किया जाता है 2 से, जब तक कि आपका क्वोशंट 0 नहीं हो जाता एंड जो रिमाइंडर होता है डिवीजन को उसे लिखा जाता है राइट साइड पे। फिर नंबर कैसे फॉर्म किया जाता है, जितने भी आपके जो रिमाइंडर्स हैं आप बॉटम से लिखना शुरू करते हैं और टॉप तक पहुंचते हैं, तो इस तरह से आपका नंबर बनेगा। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। कन्वर्टिंग नंबर 18 टू अ बाइनरी नंबर। सबसे पहले आप क्या करेंगे, 18 को क्योंकि आपको बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करना है तो 2 से डिवाइड करेंगे, जैसे आपने मैथ्स में भी किया होगा, प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं। बस फर्क इतना है कि आपको सभी नंबर्स को 2 से डिवाइड करना है एंड देन रिमाइंडर आपको साइड पे लिखना है। जैसे 18 आपका 9 से डिवाइड होगा तो रिमाइंडर बचा 0, फिर आपका 9 जाएगा 4 से और आपका रिमाइंडर बचेगा 2 4 ज़ा 8 होता है बट 9 है तो रिमाइंडर 1, देन 2 2 ज़ा 4, रिमाइंडर बचेगा 0, 2 1 ज़ा 2 एंड देन आपका रिमाइंडर बचेगा 0। अब आपके पास 1 बचा है तो 2 को जब 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 0 ही आता है, राइट। तो आपका रिमाइंडर बचेगा 1। अब आप नीचे से लिखना शुरू करेंगे 1 0 0 1 0 एंड बेस आपका क्या होगा, 2 होगा। नेक्स्ट इज कन्वर्टिंग डेसिमल नंबर टू ऑक्टल नंबर्स। अब डेसिमल नंबर को ऑक्टल नंबर में कैसे चेंज करेंगे। हियर डिवाइड द गिवन नंबर बाय 8 until the quotient is 0 and write all the remainders from bottom to top। अब आपको क्या करना है, ऑक्टल नंबर में चेंज करना है तो आपको जो भी नंबर दिया होगा उसे 8 से डिवाइड करना पड़ेगा। अगेन आपका सेम मेथड है, रिमाइंडर आप राइट साइड लिखेंगे एंड देन आप नंबर कैसे फॉर्म करेंगे, नीचे से ऊपर यानी बॉटम टू टॉप। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। कन्वर्टिंग नंबर 263 टू एन ऑक्टल नंबर। ऑक्टल नंबर में आपको चेंज करना है तो आप क्या करेंगे, 8 से डिवाइड करेंगे। तो 8 से जब आप 263 को डिवाइड करेंगे तो 32 टाइम्स होगा और आपका रिमाइंडर बचेगा 7। इसके बाद आप 8 को 32 से डिवाइड करेंगी तो 4 होगा और आपका रिमाइंडर बचेगा 0 एंड देन आप क्या करेंगे, लास्ट में आपका बचेगा 4। तो अब आप क्या करेंगे, बॉटम टू टॉप नंबर फॉर्म करेंगे तो आपका हो जाएगा 407 एंड डोंट फॉरगेट टू राइट बेस नंबर दैट इज 8। Next is converting decimal numbers to hexadecimal numbers. Here divide the number by 16 until the quotient is 0 and write all the remainders from bottom to top. अब आपको क्या करना है, हेक्साडेसिमल नंबर में कन्वर्ट करना है तो प्रोसेस आपका सेम रहेगा, सिर्फ डिवाइड आप अलग नंबर से करेंगे। तो अब आप करेंगे 16 से डिवाइड। एग्जाम्पल है आपके पास नंबर 38, हेक्साडेसिमल में नंबर में चेंज करना है तो 16 से डिवाइड करेंगे। 16 को आप
जब डिवाइड करेंगे 30 है तो 2 पे जाएगा, आपका 6 बचेगा रिमाइंडर, देन आपका 0 एंड अब आपके क्या हो गए, आपके पास बॉटम टू टॉप जाएंगे तो नंबर आपका बनेगा 26 एंड बेस पावर आपकी है 16। कन्वर्टिंग बाइनरी नंबर्स टू डेसिमल नंबर्स। अब आपको बाइनरी नंबर्स को डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करना है, तो कैसे करेंगे, आपके पास एक नंबर है 1101, तो सबसे पहले आप लिखेंगे 2 raised to the power 3, 2 raised to the power 2, 2 raised to the power 1 एंड 2 raised to the power 0। इसके बाद आप क्या करेंगे, जैसे 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 raised to the power 3, 2 raised to the power 3 होता है 8, तो आपका आंसर आएगा 8। फिर आप 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 raised to the power 2, 2 raised to the power 2 4 होता है 4। देन आप 0 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 raised to the power 1, तो आपका 0। देन आपका 1 into 2 raised to the power 0, तो आप क्या करेंगे, किसकी पावर 0 होती है, उसकी वैल्यू होती है 1, तो 1। अब आपका नंबर हो जाएगा 8 + 4 + 0 + 1 जो कि आएगा 13 एंड देन आपके बेस में आएगा 10। नेक्स्ट इज कन्वर्टिंग ऑक्टल नंबर्स टू डेसिमल नंबर्स, राइट। अब आपके पास एक नंबर है 1275, अब आपको इसको लिखना है 8 की पावर्स में, क्योंकि आप किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, ऑक्टल नंबर को कन्वर्ट कर रहे हैं डेसिमल में। तो नंबर है आपके पास 1275, 8 raised to the power 3, then 8 raised to the power 2, 8 raised to the power 1 and 8 raised to the power 0। आपका सेम है जैसे हमने पिछले एग्जाम्पल में किया था। अब आपके पास नंबर 1 है, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 8 raised to the power 3 जो कि होता है 512, तो 512 आएगा। नेक्स्ट आप 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 8 raised to the power 2, 8 की पावर 264 होता है, जब 2 को 64 से मल्टीप्लाई करेंगे 128। इसके बाद 7 को मल्टीप्लाई करेंगे 8 raised to the power 1 यानी 56 एंड देन 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 8 raised to the power 0, 8 raised to the power 0 हो जाएगा 1। इसके बाद जब आप प्लस करेंगे इन चारों नंबर्स को तो आपका आएगा 701 एंड बेस नंबर आपका होगा 10, क्योंकि इसे हम डेसिमल नंबर में कन्वर्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट है कन्वर्टिंग हेक्साडेसिमल नंबर टू डेसिमल नंबर। अब आपको कन्वर्ट करना है AB2 16 को एक डेसिमल नंबर में, तो देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले A आपका है 16 raised to the power 2, B आपका है 16 raised to the power 1 एंड 2 है आपका 16 raised to the power 0। अब आप क्या करेंगे, A को मल्टीप्लाई करेंगे 16 raised to the power 2 यानी 256 से, और A की वैल्यू कितनी होती है, A की वैल्यू होती है 10, तो 10 into 256 2560। नेक्स्ट आप B को मल्टीप्लाई करेंगे 16 raised to the power 1, B की वैल्यू होती है 11, 11 को जब 16 से करेंगे तो 176। नेक्स्ट 2 into 16 raised to the power 0, तो आपका 2 आएगा, और प्लस करेंगे तो आपके पास आएगा 2738। Converting binary numbers to octal numbers. From the digits used in the octal number system 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7, the largest digit is 7. We can indicate 7 as 111 in binary form. Thus, 7, the largest digit in the octal number system, can be indicated in a binary form with 3 digits. Likewise, all the digits in the octal number system can be indicated in the 3-digit binary form. अब देखिए ऑक्टल नंबर सिस्टम में आपके डिजिट 0 से लेके 7 होते हैं, 7 आपका लार्जेस्ट होता है, तो उसे किस तरह से बाइनरी फॉर्म में लिखा जा सकता है, 111 एंड बेस आपका होगा 2। तो इसी तरह बाकी नंबर्स को भी लिखा जा सकता है। तो देखते हैं, सबसे पहले आपके पास है डेसिमल नंबर्स आपके हैं 0 से लेके 7, ऑक्टल नंबर भी हैं 0 से लेके 7। बाइनरी नंबर में उसे किस तरह से लिखा जाएगा, 0 को लिखा जाएगा 001, 1 को लिखा जाएगा 001, 2 को लिखा जाएगा 010, 3 आपका होगा 011, 4 होगा आपका 100, 5 होगा 101, 6 होगा 110 एंड 7 आपका होगा 111। As per the above table, 3 bits are used when indicating an octal number in binary form. तो टेबल से आपको क्या पता लगा कि जो 3 बिट्स का यूज किया गया है जब हम एक ऑक्टल नंबर को इंडिकेट करें बाइनरी फॉर्म में। Let us consider how a binary number is converted to an octal number. अब हम देखेंगे कि बाइनरी नंबर को ऑक्टल नंबर में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। सबसे पहले आपको एक नंबर दिया गया है, तो आप क्या करेंगे, Firstly, divide the number into 3 bits cluster from the right corner to the left corner. आप right corner से left corner में इन bits को divide कर देंगे. If the last cluster in the left corner does not consist of 3 bits, add 0 to complete. अगर आपके left corner में 3 bits complete नहीं हो रहे हैं तो आप उसमें 0 add कर सकते हैं.
Write each octal number separately for each cluster. Then write these clusters in octal numbers. Write these digits in order from the left corner to the right corner. अब आपके पास एक नंबर दिया गया था, इसको 3 क्लस्टर में, क्लस्टर ऑफ 3 में हम इसे डिवाइड कर देंगे राइट साइड से, राइट। अब आपके पास जो आपका लेफ्ट में आया 0 1 0, इसका मतलब है 2, 1 1 0 का मतलब है 6 एंड 1 0 0 का मतलब है 4, जैसा कि आपको टेबल में मेंशन किया गया था। यानी ये जो नंबर है वो आपका बनेगा 264, ये आपका ऑक्टल नंबर बन गया। कन्वर्टिंग बाइनरी नंबर्स टू हेक्साडेसिमल नंबर्स. From the symbols used in the hexadecimal number system, the value represented by F possesses the largest numerical value. This can be indicated as a 4 bits binary number. 1111. Thus, all the digits in the hexadecimal number system can be indicated as 4 bits binary numbers. Hexadecimal number system में आपकी जो value F है, उस largest numerical value है इसका, तो इसलिए उसको indicate कर सकते हैं हम 4 bits binary number में, जैसे कि आपका है 1111. अब आपको टेबल दी गई है जिसमें आपके डेसिमल नंबर हैं, हेक्साडेसिमल नंबर है एंड उनका बाइनरी नंबर है। अब आपके पास डेसिमल नंबर है 0 से लेके 15 तक एंड हेक्साडेसिमल नंबर है आपके 0 से लेके F तक, और इसके बाद इनका बाइनरी नंबर दिया गया है, जैसे कि 0 का है 0000, 1 का है आपका 0001, 2 है आपका 0010, 3 है आपका 0011, और इसी तरह से आपका लास्ट आपका 15 यानी कि F है, तो आपका है उसमें 1111. As shown in the table above, 4 bits are used to indicate hexadecimal number in binary form. 16 is equals to 2 raised to the power 4. तो अगर आप टेबल में देख सकते हैं तो जो 4 बिट्स हैं वो इंडिकेट कर रहे हैं एक हेक्साडेसिमल नंबर को बाइनरी फॉर्म में। तो चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। कन्वर्टिंग नंबर 10110 टू अ हेक्साडेसिमल नंबर। सबसे पहले आप क्या करेंगे, डिवाइड द नंबर इनटू 4 बिट्स क्लस्टर फ्रॉम द राइट कॉर्नर टू द लेफ्ट कॉर्नर. Write hexadecimal numbers separately for each cluster. Write these numbers in order from the left corner to the right corner and write down the base. अब देखिए जैसे आपने पहले किया था, अब आपको 4 क्लस्टर्स में डिवाइड करना है, तो इस तरह से आपका क्या आ जाएगा 0001 0110, तो 0001 आपका होगा 1 एंड 0110 आपका होगा 6, यानी आपका ये नंबर बन जाएगा 16 एंड आपका बेस होगा 16. नेक्स्ट एग्जाम्पल इज कन्वर्ट करना है इसे भी हेक्साडेसिमल नंबर में, तो अगेन आप क्या करेंगे 4 का क्लस्टर बनाएंगे, आप राइट से शुरू करेंगे, तो आपके पास सबसे पहले आएगा जो 0101 वो है 5, 1101 आपका DE एंड 1100 C, यानी कि आपका क्या बनेगा 5DC एंड बेस पावर आपकी होगी 16. नेक्स्ट है कन्वर्टिंग ऑक्टल नंबर्स टू बाइनरी नंबर्स. अब ऑक्टल नंबर को बाइनरी नंबर में कैसे कन्वर्ट करें? Each digit in octal numbers should be written in 3 digits when it is converted to base 2. अब एग्जाम्पल देखते हैं, आपको कन्वर्ट करना है 457 को बाइनरी नंबर में. Firstly, write each digit in octal number in 3 bits. Secondly, write down all the bits together to get the binary number for the octal number. 457 आपके नंबर्स हो गए. Then 4 आपका आप कैसे लिखेंगे 100, 5 आपका 101 एंड 7 111, तो आपका नंबर बन जाएगा 100101111 एंड बेस आपका होगा 2. नेक्स्ट इज कन्वर्टिंग ऑक्टल नंबर्स टू हेक्साडेसिमल नंबर्स. अब आपके पास एक नंबर है 1057, इसको हेक्साडेसिमल नंबर में कन्वर्ट करना है. Firstly, write each digit in octal number in 3 bits. Divide the binary number you get into 4 bits cluster from the right corner to the left corner. Write the related hexadecimal number for each cluster. देखिए 1057 को आप लिखेंगे और उसके बाद उसका नंबर आप मेंशन करेंगे, तो which is 001 00, 5 का है 101 एंड 7 का है 111. इसके बाद आपका हो जाएगा 0010 and 00102 and then 1111 आपका 15. अब 15 आपका देखिए किसको रिप्रेजेंट करता है F को, तो नंबर हो जाएगा आपका 22F एंड बेस पावर 16. नेक्स्ट इज कन्वर्टिंग हेक्साडेसिमल नंबर टू बाइनरी नंबर. अब हेक्साडेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करना है, तो व्हेन अ हेक्साडेसिमल नंबर इज कन्वर्टेड टू अ बाइनरी नंबर, each digit in that number should be indicated in a 4 bits binary number.
आपके पास नंबर है 156, इसको बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले आप इसे अलग करेंगे 1, 5 एंड 6 एंड देन उनकी जो वैल्यूज़ है आप वो लिखेंगे, तो आपके पास नंबर आ जाएगा एंड बेस आपका रहेगा 2, क्योंकि बाइनरी नंबर में आप कन्वर्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट है आपको नंबर कन्वर्ट करना है 3AF को बाइनरी नंबर में। तो सबसे पहले आप इन्हें अलग करेंगे, देन उनकी वैल्यूज़ लिखेंगे एंड देन उन्हें साथ में लिख के बेस वैल्यूज 2 आ जाएगी। नेक्स्ट है आपका कन्वर्टिंग हेक्साडेसिमल नंबर्स टू ऑक्टल नंबर्स। Firstly, the hexadecimal number should be converted to a binary number and then it should be converted to an octal number. देखिए, जब hexadecimal number को octal number में convert करेंगे तो सबसे पहले हमें hexadecimal number को binary number में convert करना है और फिर उसको octal number में convert करना है। For example, आपके पास है 23A, इसको convert करना है octal number। सबसे पहले आप उसे binary number में convert करेंगे, फिर आपके पास जो नंबर आएगा आप 3 के क्लस्टर में आप उसे लिखेंगे एंड देन उससे ऑक्टल नंबर में चेंज करेंगे, तो आपके पास फाइनल नंबर आएगा 1072 और उसकी बेस होगा 8। क्विक रिव्यू। A computer can understand the positional number system where there are only a few symbols called digits. Any data in the world can be represented on the computer using 0 and 1 digits. इस वर्ल्ड में जो भी डेटा है उसे कंप्यूटर पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम 0 and 1 डिजिट में। Each number system is made of a unit, number and base or radix. A number is a symbol which represents a unit or quantity. The number of symbols used in a number system is called the base or radix. The base of any number system is indicated in decimal numbers. The number system, which consists of 0 and 1, is a binary number system. The smallest value in binary number system is called bit. The number system, which uses 8 digits 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, is called the octal number system. The computer uses binary numbers and it is difficult for human beings to read them. Hence, the hexadecimal number system is used as it is easier for humans to use. Children, I hope आपको ये चैप्टर समझ आया होगा और इस चैप्टर की प्रैक्टिस अब आप खुद से करेंगे।